بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب کا ایک ایسا شیرمہ بیٹا ہو گزرا ہے جس کی نس نس میں مٹی کی محبت رچی بسی تھی اور پنجاب پر غیر ملکی حکمرانی وہ کبھی بھی قبول نہ کر سکا۔ کچھ دن ہی گزرتے تھے کہ پھر اطلاع مل جاتی کہ نظام نے کسی اور انگریز افیسر کو موت کی نیند سلا دیا ہے۔ انگریز سرکار نے نظام لوہار کے سر کی قیمت 4 مربع اراضی اور 10,000 روپے لگا دی۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں 10,000 روپے آج کے 10 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ویلیو رکھتے تھے۔ انگریز سرکار اور تمام افیسر کے نظام لوہار کا نام سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان پر خوف کا عالم طاری ہو جاتا تھا کیونکہ نظام آئے روز ہی کسی نہ کسی انگریز کو پھڑکا دیتا تھا۔ انگریز بزدل حکومت اور مکار ڈرپوک افیسر جب نظام لوہار کو نہ پکڑ سکے اور نہ اس کا کچھ بگاڑ سکے تو آخر میں گھٹیا چال چلتے ہوئے ایک رات کیپٹن کول نے نظام کی بوڑھی ماں کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کی بہن کی آبرو ریزی بھی کی۔ جب اس بات کی خبر نظام لوہار کو لگی تو وہ اگلی ہی رات ترن تارن تھانے جا پہنچا اور اس انگریز پولیس افیسر کیپٹن کول کو گولیاں مار کر جہنم واصل کر دیا۔ آج بھی پنجاب میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ نظام لوہار دی راتی اور کوئی نہیں جمیا۔ تاریخ کا بغور مطالعہ کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے ہی یہ دستور رہا ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی استعمار کے خلاف آواز اٹھی تو استبدادی قوتوں نے آواز اٹھانے والے مزاحمتی کردار کو باغی، ڈاکو، غدار اور اسی نوعیت کے الفاظ سے رائدائے تاریخ کرنے کی کوشش کی اور ہر اس محب وطن کردار کو بے پناہ تکالیف پہنچائیں۔ عزیزوں، رشتہ داروں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ کسی نے ماں بہن کی عزت کو بے آبرو کیا تو کسی نے اولاد کو ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور اپنے تائیں اس مزاحمت کار کو موت کی نیند سلا کر یہ اخذ کر لیا کہ مزاحمتی آواز اور کردار ہمیشہ کے لیے تلف کر دیا گیا، مگر یہ کبھی نہیں ہو سکا۔ مزاحمتی تحریک ہمیشہ آگے بڑھتی رہی اور اپنا راستہ بھی خود نکالتی چلی گئی۔ ہمارے ہاں پنجاب میں بھی چاہے وہ سکندر اعظم کا حملہ ہو یا مغربی سرحدوں سے آنے والے حملہ آوروں کی یلغار ہو یا مغلیہ اور عملداریوں کے ظلم و ستم کو کچلنے کے لیے مزاحمتی آوازیں اور کردار ابھرتے رہے ہوں، یہ وہ کردار تھے جنہوں نے ظلم اور استبداد کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائی اور مزاحمت کی بلکہ اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اس دھرتی کی غیرت اور اہمیت پر اپنے لہو سے تاریخ رقم کرتے چلے گئے۔ راجہ پورس ہو چاہے دلہ بھٹی ہو، رائے احمد خان کھرل ہو، بھگت سنگھ ہو، سکھ دیو ہو، ملنگی ہو، چراغ بالی ہو یا چراغ ماچی ہو، لا تعداد کریکٹر ہیں، کردار ہیں جنہوں نے بیرونی حملہ آوروں، بادشاہوں، سلاطینوں اور مطلق العنان حکمرانوں کو ناکوں چنے چبا دیے اور پنجاب کو چوروں، لٹیروں اور عصمت دوروں کے ناپاک قدموں سے پاک کرنے کی جدوجہد کرتے رہے۔ ان میں سے ایک کردار ایسا بھی ہو گزرا ہے جس نے اپنی شہادت تک انگریز کو پنجاب میں قدم نہیں جمانے دیے اور ہر انگریز حملہ آور کے لیے خوف اور موت کی علامت بنا رہا۔ وہ کردار تھا نظام لوہار کا۔ نظام لوہار کا نام آج ہماری نئی پود شاید ہی جانتی ہو یا شاید ہی انہوں نے یہ نام سن رکھا ہو۔ نظام لوہار پنجاب کا ایک ایسا شیرمہ بیٹا ہو گزرا ہے جس کی نس نس میں مٹی کی محبت رچی بسی تھی اور پنجاب پر غیر ملکیوں کی حکمرانی وہ کبھی بھی قبول نہ کر سکا۔ وہ 1835 میں پنجاب کے ایک مقدس شہر ترن تارن صاحب میں مسلمان اور غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ لوہار خاندان تھا۔ ماں عمر رسیدہ اور ایک بہن نظام سے بڑی تھی۔ ماں گھر کا چولہا چوکھا چلانے کے لیے لوگوں کے گھروں میں مختلف کام کاج کیا کرتی تھی۔ نظام 5 سال کا ہوا تو اسے سکول داخل کروا دیا گیا۔ ماں کا یہ خیال تھا کہ چلو پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے گا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا بیٹا کون ہے۔ پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ نظام دین بھی تیکھی سود تھا۔ سکول میں اپنے کلاس فیلو سے الگ تھلگ رہتا، کسی اپنی ہی سوچ میں گم، اس کے ہم عمر نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا سوچتا رہتا ہے اور کیا کچھ کر گزرنے کے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ نظام لوہار پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کے آخری ایام میں پیدا ہوا تھا۔ مہاراجہ کے دیہانت کے بعد جب راج سنگھاسن پر قبضے کی تگو دو سکھ فوج کی بغاوت، مہاراج کھڑگ سنگھ اور اس کے بیٹے نونہال سنگھ کی موت، مہاراجہ شیر سنگھ کے حملے اور پھر قتل، سندھا والے سرداروں کی سازشیں، رانی جندہ کی چالیں
और फिर 1849 में अंग्रेज ईस्ट कंपनी के पंजाब पर कब्जे के तमाम वाकयात हादसात और पंजाब के बासियों, किसानों और गरीब रियाया की कसम पुरसी, बेबसी और लाचारगी के तमाम मराहिल निजाम लोहार के नौ उम्र जहन पर नक्श होते चले गए। वो सोचता रहा और अपने ताईं पंजाब के हालात को सुधारने के मंसूबे बनाता रहा। किसानों पर भारी लगान, हुकूमती अहलकारों का गरीब खेत मजदूरों पर तशद्दुद एक आम सी बात थी। सरकारी अहलकार, पुलिस वाले मुस्तंडे, बाअसर और अंग्रेज के गमाश्ता मरात याफ्ता गद्दार जिम्मेदार, जिसका जो जी चाहे अपना हक समझ कर छीन लेता। इज्जतें खतरे में पड़ चुकी थी। निजाम सोचता रहता, गुम सोकर फिर वो अचानक इस नतीजे पर पहुंचा कि सारी की सारी बुराई की जड़ अंग्रेज हुकूमत है। इसमें मजामती जज्बे उभरने लगे। सोच ने बागियाना रवश अख्तियार कर ली। स्कूल तो छूट चुका था, अपने बाप दादा के पेशे से मुंसलिक हो गया। अचानक एक दिन इसने अपने लोहार खाने की भट्टी में लोहे की एक बुर्ची डाली और इसे तेज धार देकर बुर्ची चलाने के तरीके सीखता रहा। फिर एक दिन इसने एक पिस्तौल भी बना डाला। निजाम के एक दोस्त शफकत उर्फ शब्बू कहते हैं कि निजाम में एक खास खूबी अल्लाह ताला ने ये रखी थी कि वो जिस चीज को सोचता था वो कर गुजरता था। वो पिस्तौल लेकर घर गया तो बूढ़ी माँ कांप गई। इसे खूब बुरा भला कहा कि अगर किसी को इल्म हो गया तो क्या बनेगा। बेटा इसके बुढ़ापे का वाहिद सहारा था, मगर माँ की डांट डपट का निजाम पर कोई असर नहीं हुआ। वो जेरे लब मुस्कुराया मगर चुप रहा। इसके अंदर एक नया इंसान जन्म ले चुका था। फिर वो लगातार हथियार बनाता रहा। फिर एक रोज इसे इल्म हुआ कि मकामी सतह पर अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। इसने मकामी बागी लीडरों रंजीत सिंह और मलकीत सिंह से रवाबित पैदा किए और इन्हें अपना बनाया हुआ असला सप्लाई करना शुरू कर दिया और खुद भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ खुफिया कार्रवाइयां करना शुरू कर दी। इस दौरान मुखबरी हो गई। मकामी अंग्रेज इदारों को निजाम लोहार पर शक तो पहले ही हो चुका था, मगर कोई सबूत हाथ नहीं आ रहा था। मुखबर ने बताया कि निजाम लोहार अपने घर के तय खाने में हथियार छुपा कर रखता है। इतला मिलने पर तुरंत तारन पुलिस ने निजाम लोहार के घर पर अचानक छापा मार दिया। पुलिस छापा मार टीम की क़यादत अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन कोल कर रहा था। हथियार तो बरामद हुए, मगर कैप्टन कोल ने निजाम लोहार की बूढ़ी माँ को बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया और इसकी बहन की आबरू रेजी भी की। निजाम लोहार की माँ खुद पर तशद्दुद तो शायद बर्दाश्त कर लेती, लेकिन जवान बेटी की असमत दरी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त न कर पाई और सिसकती सांसें लेती दम तोड़ गई। निजाम रात गए घर वापस आया तो माँ को मुर्दा और बहन को बेआबरू पाया। बहन ने सारा वाकया भाई को सुना दिया। यही वो अंदोनाक वाकया था जिसने निजाम लोहार की जिंदगी का रुख मोड़ दिया। इसने उसी रात अपनी बहन को साथ लिया और ले जाकर अपने एक जिगरी दोस्त मोहम्मद शफी के साथ इसका निकाह करवा दिया और खुद घर बार छोड़कर जंगल बियाबां में एक सुनसान हवेली में बसेरा कर लिया। इस हवेली को सकराब वाली हवेली कहते हैं। हवेली में बामुश्किल एक रात और दिन गुजार कर वो अगली ही रात तुरंत तारन थाने जा पहुंचा और उस अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन कोल को गोलियां मारकर जहन्नुम वासल कर दिया, जिसने इसकी मां का खून और बहन की असमत दरी की थी। सारे तुरंत तारन में अंग्रेज पुलिस ऑफिसर के कत्ल की इतला जंगल की आग की तरह फैल गई और इसके बाद ये खबर हर लम्हे पूरे पंजाब में फैलती चली गई। लोगों में निजाम लोहार के मुतालिक जानने का तजस्सुस पैदा हुआ। चौपालियों में इसके नाम के चर्चे शुरू हो गए। ऑफिसर कैप्टन एक बदनीयत और बदबख्त पुलिस ऑफिसर था। लोगों पर जुल्मो सितम तो रवा रखता, औरतों की असमत दरी भी किया करता। लोग बेबस थे, निहत्ते थे, अंग्रेज सरकार के जुल्मो सितम से बहुत तंग थे और दिल बर्दाश्ता थे, मगर छुटकारे का कोई सबब नजर नहीं आता था। निजाम लोहार के हाथों कैप्टन कोल के मरने के बाद जैसे पंजाबियों में हौसला जी उठा। देहातों और कस्बों की आम संगतों में अभी कैप्टन कोल की मौत के किस्से जारी ही थे कि निजाम लोहार ने सीनियर अंग्रेज पुलिस सुप्रीडेंट रोनाल्ड को भी इसके कई मतहत पुलिस एहलकारों समेत मौत के घाट उतार दिया। निजाम लोहार और इसके मुहिबे वतन साथी रोनाल्ड को कत्ल करके इसकी लाश भी उठाकर ले गए और रोही नाले में फेंक दी, जो कई रोज बाद गली हालत में मिली। निजाम लोहार की बर्छी रोनाल्ड के सीने में पेवस्त थी। इस मार्के के बाद निजाम लोहार पंजाबियों के लिए इनकलाबी शेर और अंग्रेज सरकार के लिए दहशत की अलामत बन गया। घर घर में निजाम लोहार के चर्चे शुरू हो गए।
इसके साथियों में भी इजाफा होता चला गया। अंग्रेज सरकार ने निजाम लोहार के सर की कीमत 4 मुरब्बा अराजी और 10,000 रुपए लगा दी। लेकिन याद रहे कि उस वक्त 10,000 रुपए की वैल्यू आज के 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। मगर किसी को इसकी मुखबरी करने, पुलिस की मदद करने की जरूरत न हुई। निजाम लोहार रोज बरोज अंग्रेज सरकार के लिए दर्दे सर बल्कि ताना बन गया। निजाम लोहार को इश्तिहारी करार देकर सारे पंजाब में इसके इश्तिहार लगा दिए गए। शहर शहर, गांव गांव, बाजारों में इलानात करा दिए गए कि जो निजाम लोहार को जिंदा या मुर्दा पकड़वाएगा उसको 4 मुरब्बा अराजी और 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। मगर सब कुछ बेसूद रहा। इसके बाद इस इनाम में एक और इजाफा कर दिया गया कि जो भी निजाम लोहार को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कराएगा उसको रकम अराजी के साथ साथ कचहरी में कुर्सी भी मिलेगी। मगर इसके बिल्कुल बरक्स हुआ। पंजाब के देहातों में आजादी के मतवाले पंजाबियों ने यह ऐलान जारी कर दिया कि जिस किसी ने भी निजाम लोहार की मुखबरी की उसे ही नहीं बल्कि इसके पूरे खानदान को जहन्नुम वासिल कर दिया जाएगा और इसके घर को भी आग लगा दी जाएगी। ये एक तरह से सरकार के खिलाफ अवामी बगावत का ऐलान था। निजाम लोहार ने अपनी कार्रवाइयां जारी रखी। कुछ दिन ही गुजरते थे कि फिर इतला मिल जाती कि निजाम ने किसी और अंग्रेज अफसर को मौत की नींद सुला दिया है। वो जागीरदारों के घरों को भी लूट लेता और लूटी हुई रकम और तलाई जेवरात गरीबों में बांट देता। अंग्रेज और इसके वफादार मकामी गद्दार निजाम लोहार का नाम सुनते ही कांपने लगते। लाहौर और कसूर इलाके में जबरू जट नाम का एक इनकलाबी और भी था जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ था। इसे जब निजाम लोहार के कारनामों का इल्म हुआ तो वो भी निजाम लोहार के साथ जा मिला। इससे कबल निजाम लोहार और इसका एक जिगरी दोस्त सूजा सिंह भी अपने दीगर इनकलाबी साथियों के हमरा अंग्रेज कुशी में मसरूफ था। मगर जबरू जट के शामिल होने के बाद ये इनकलाबी ग्रुप मजीद ताकतवर हो गया और अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तहरीक पंजाब छड़ दो यानी पंजाब छोड़ दो तहरीक का आगाज कर दिया गया। वक्त गुजरता रहा। पंजाब भर से अंग्रेज सरकार से नफरत करने वाले पंजाबी बागी इस तहरीक का हिस्सा बनते चले गए और अंग्रेज सरकार के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। निजाम लोहार एक शख्स नहीं बल्कि गासिब अंग्रेजों के खिलाफ मज़ाहमत का अलम बन चुका था। एक रात पुलिस ने तहसील सिब्बी के कब्रिस्तान में छापा मारा। निजाम इस खुफिया अड्डे को छोड़कर जा चुका था मगर सूजा सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसी रात निजाम लोहार की मुलाकात सूजा सिंह की मां जीता कौर से हुई। इसने इसे रो रो कर बताया कि सूजा सिंह गिरफ्तार हो गया है और पुलिस इसे मार डालेगी। निजाम लोहार ने इसे तसल्ली दी और खुद वक्त जाय किए बगैर टिब्बा कमाल चिश्ती की तरफ चल निकला, जिसके मुतल्लिक इसे इतला मिल चुकी थी कि पुलिस इसके दोस्त और साथी सूजा सिंह को गिरफ्तार करके इसी तरफ जा रही है। थाने पहुंचने से पहले ही निजाम ने पुलिस पार्टी को जा लिया। मुकाबला हुआ, कई पुलिस एहलकार कत्ल हुए और निजाम लोहार ने अपने साथी सूजा सिंह को बाहिफाजत पुलिस के नरगे से छुड़ा लिया। बेटे को जीता जागता देखकर सूजा सिंह की मां ने निजाम लोहार को अपना बेटा बना लिया। इसके सर पर पंजाब के फख्र की अलामत पग बांधी गई। इसके बाद सूजा सिंह और निजाम लोहार ने मिलकर मजीद 4 अंग्रेज पुलिस अफसरों को कत्ल कर दिया। इसके बाद पंजाब छोड़ दो तहरीक का एक हंगामी इजलास निजाम लोहार की सरबराही में हुआ, जिसमें मुतफिका तौर पर यह फैसला किया गया कि अब आइंदा मेलों ठेलों में भी छापे मारकर अंग्रेजों को कत्ल किया जाएगा। हवेलियों में डाके डाले जाएंगे और लूट मार का सारा सामान और माल गरीबों में तकसीम कर दिया जाएगा। यह तहरीक अंग्रेजों के लिए एक अजाब की सूरत अख्तियार कर गई। अंग्रेज सरकार ने अब निजाम लोहार का खात्मा करने के लिए एक अंग्रेज सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस जॉन लियो को तैनात कर दिया। जॉन लियो ने किसी तरह से निजाम लोहार से पुरअमन मुआमलात तय करने और आम मुआफी दिलाने का वादा करके मुलाकात का पैगाम पहुंचाने का इंदिया दिया। मगर ये एक साजिश थी जिसे निजाम भांप तो चुका था, मगर जब वो भेस बदल कर जायजा लेने गया तो इसे सफेद लिबास में धाक लगाए खड़े पुलिस एहलकार नजर आ गए, मगर वो शेर जवान भागा नहीं। अंग्रेज पुलिस वाले इसे पहचान नहीं सके। वो आनन फानन अंग्रेज एसपी जॉन लियो को अपनी गोलियों से छलनी करके फरार हो गया और छांगा मांगा के जंगलों में जबरू जट के पास जाकर पनाह ली। उधर पंजाब छड़ दो तहरीक परवान चढ़ रही थी। ये सब देखकर अंग्रेज अय्यार अफसर
निजाम लोहार को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के मंसूबे बनाते रहे, मगर बेसूद रहा। इस दौरान निजाम लोहार का जिगरी दोस्त सूजा सिंह परदेसी गांव की एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया। एक दिन निजाम लोहार सूजा सिंह की मां की शदीद बीमारी की इतला पाकर इसकी खबरगिरी के लिए गया। सूजा सिंह के घर गया तो इसे सूजा और इसकी माशूक के ताल्लुकात की खबर हुई। इसने सूजा सिंह को बहुत बुरा भला कहा कि वो इस चक्कर में पुलिस के हत्थे चढ़ सकता है, सारी तहरीक का खाना खराब हो जाएगा, मगर इसकी आंखों पर इश्क की पट्टी बंधी थी। सूजा सिंह ने जाकर अपनी माशूक को सारा किस्सा सुना दिया। इस पर वो निजाम लोहार के खिलाफ हो गई। इसने सूजा सिंह के कान भरने शुरू कर दिए कि कत्ल तो निजाम लोहार करता है, मगर चूंकि तुम उसके साथी हो इसलिए फांसी पर तुम्हें भी चढ़ा दिया जाएगा। सूजा सिंह इसकी बातों में आ गया और इस लड़की से उम्र भर साथ निभाने की खातिर इसने वो काम कर दिया जिसकी वजह से आज भी तुरन तारन के लोग सूजा सिंह पर लानत और मलामत करते हैं। निजाम लोहार चौंके इसकी मां जीता कौर की तीमारदारी के लिए इसके घर ठहरा हुआ था। सूजा सिंह ने थाना बड़ियाला में जाकर मुखबरी कर दी कि निजाम लोहार इसके घर में मौजूद है। मुखबरी पर पुलिस ने फौरी तौर पर सूजा सिंह के घर को घेरे में ले लिया। कुछ सिपाहियों ने इस कमरे की छत तोड़ना शुरू कर दी जिसमें निजाम लोहार सो रहा था। छत तोड़ने की आवाजें सुनकर वो चौंक गया। उसी कमरे में इसकी घोड़ी भी बंधी हुई थी। इसने पुलिस की गोलियों से बचने के लिए लोहे का तांबा अपने सर पर पहन लिया और जल्दी से अपनी घोड़ी पर सवार होकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर इसका सर दरवाजे की चौखट पर इतनी जोर से टकराया कि वो घोड़ी से गिर गया और बेहोश हो गया। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि पुलिस ने जिस कमरे में जहां निजाम लोहार बेहोश पड़ा था 48 घंटे तक लगातार गोलियां बरसाईं। तीसरे दिन निजाम लोहार की लाश पोस्टमार्टम के लिए कसूर के सिविल अस्पताल लाई गई। पुलिस वापस थाने पहुंची तो निजाम लोहार का यार मार दोस्त सूजा सिंह भी इनाम लेने की गरज से थाने में मौजूद था। जबरू जट भी गिरफ्तार हो चुका था। जब सूजा सिंह की मां जीता कौर को अपने बेटे की बेवफाई का इल्म हुआ तो वो भी थाने पहुंच गई। क्या मुश्किल और फैसला कुन लम्हा होगा कि एक तरफ इसका मुंह बोला बेटा निजाम लोहार जो पंजाब की गैरत और पक्का शिमला था, दूसरी जानब इसका गद्दार बेटा सूजा सिंह वो क्या करती, आखिर शेरनी थी। इसने वही फैसला किया जो एक शेरनी को करना चाहिए था। इसने थाने पहुंचकर तलवार खींची और अपने गद्दार सूजा सिंह का सर तन से जुदा कर दिया। इस अजीम खातून ने थाने में ही जेरे हिरासत जबरू जट को गवाह बनाकर वो तारीखी जुमला कहा कि जबरू पुत्र गवाह रहना, ये गद्दार मर गया है, और अपने बेटे की लाश को मुखातिब करते हुए कहा कि सुन एक काल भी अपने जाके मैं बख्शिया, यानी सूझया तू मरते हुए ये भी सुन ले कि मैं तुम्हें अपनी धारें भी नहीं बख्शूंगी। क्या अजीम किरदार था इस पंजाब की शेरनी मां का। निजाम लोहार के जनाजे में लाखों लोगों ने शिरकत की। पंजाब के किसानों मेहनत कशों का खून निचोड़ने वाली अंग्रेज सरकार ने यहाँ भी बस नहीं की और इस शेर के जनाजे में शिरकत के लिए 2 रुपए टैक्स लगा दिया। गरीब आवाम के लिए ये रकम तो काफी भारी थी, मगर लोगों ने 2-2 रुपए अंग्रेजों के मुंह पर मारे और नमाज जनाजा में मुसलमान, सिख, हिंदू, हर मजहब और दीगर अकायद के लोगों ने शिरकत की और इस जवां मर्द के जस्ते खाकी को कसूर के कब्रिस्तान में आसूदा खाक कर दिया। निजाम लोहार शहीद हो गया, मगर छड़ दो पंजाब तहरीक जारी रही जिसकी कई शाखें मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की सूरत में बट गई थी और बिल आखिर अंग्रेज को पंजाब तो क्या पूरा हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। आज भी लोग निजाम लोहार को आजादी का सिंबल और पंजाब का रोबर हॉट कहते हैं। आज भी पंजाब में कहावत मशहूर है कि निजाम लोहार दी राती होर कोई नहीं जमया। अंग्रेज मुअर्रिख डॉकन मेयर लिखते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि निजाम लोहार एक गैरतमंद शख्स था जिसको अपनी धरती से बेपनाह मोहब्बत थी। वो अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए जान छिड़कने के लिए तैयार रहता था। इस अकेले शख्स ने अपनी जान हथेली पर रखकर पूरे पंजाब और हिंदुस्तान के लोगों के लिए आजादी लड़ने की जो जंग की वो तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखी गई है।